Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Waqas Abdul Salam. I belong to Lahore. I am serving as Assistant Director Electrical, Government Center of Excellence for Training and Development, GSTC, Mughalpura, Lahore. आज हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर टीचिंग मैथडोलॉजीज। तो इस इंटरव्यू के ऊपर जो है वो बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I joined TAPTA in November 2016 as a regular principal in Government Technical Training Center, District Jail, Gujarat. During my tenure as a principalship, I have performed my administrative duties, financial duties, and monitoring of academic activities in my institution. The admission of my institute was more than 100%. The result of the institute was 100%. The cleanliness and maintenance standards were excellent, and discipline of the institute was remarkable. During this period, I have planted almost 4,000 plants within the premises of my institute to provide a good learning environment to the student. In addition to that, I was the master trainer of digitized monitoring and evaluation software, which was introduced in TAPTA in 2020 for implementation. And I have implemented this software in my institute as well as the institutes in the four districts of India. So I personally monitor my classes. I made interview with my students. I took feedback from them. I guide the teachers and observe their teaching methodologies. So the overall result of all these activities was very good. I served there for a period of about 7.5 years. After that, I transferred to research and development section, which is called as R&D section in TAPTA Secretariat Lahore. During this period, I have performed primary and secondary research for the establishment of new institution courses for the upgradation of the existing institutions. I prepared gap analysis of DA courses. I have performed TNA training need assessment activities in R&D section. During this period, I have learned a lot from this department. I served there for a period of about 6 months. After that, I transferred to Government Center of Excellence, Mughalpura, Lahore. Here, the scope of my duties were changed a little bit. I became the master trainer and lead trainer of the trainings like solar PV system, electrical, electrician, and renewable energy resources. The first training which I conducted here is the skill upgradation training of electrician trade. It was conducted in November 2023, December 2023. It was very successful. It was conducted in COE as well as the floor of Pell Private Limited. After that, 1 month overseas returning training conducted by GIZ was also conducted here, and I was the lead trainer of that training. 30 students were enrolled in that training, and all the students who got admission, they got employment after completing the course. After that, second batch of GIZ training was conducted, and the same result was repeated. So, in addition to that, industrial trainings are conducted in COE in summers, in which teaching staff from the various institutes of TAPTA are invited for the conduct of industrial trainings. The major industries which collaborate with us in this regard are PEL Private Limited, Honda, Sky Power Private Limited, Creative Electronics Private Limited,
Unique, Solar Private Limited. All these industries not only provide venue or floor for the trainings of the teaching staff, but also provide job opportunities to our trainees after the completion of their trainings. So, in addition to that, I have performed many additional activities like international accreditation and all the tasks which were assigned by me from the management. So, I have completed my tasks on the time, and I am conducting my duties very honestly. This was the introduction of my job career. Now I want to introduce my academic career, and I was first in my department of electrical engineering of the university. After that, I enrolled in PhD electrical engineering program, and currently I am the research scholar in the field of electrical engineering. So, what I have learnt from my knowledge, I try to implement it on my job. तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम जो कुछ भी मैंने अपने तलीमी सफ़र में सीखा है उसको हम स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज करें। तो अभी रिसेंटली हमारे पास टैप्टा में टैप्टा रेहान फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसका बैच 5 चल रहा है, और मैं बैच 5 का पार्टिसिपेंट हूँ। मुझे ये टास्क असाइन किया गया है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्निक्स हैं, उसमें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए मैं तारुफ आपको करवाऊंगा। हमारे साथ हैं मिस्टर अलीम अलीम बिन। तो ये जो है अलीम, ये मेरे साथ और रेहान अलावाला के साथ फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं, और इनका जो है वो जॉब भी जो है वो सीओई के अंदर है। और फिर ये कि ये एक एजुकेशनल घराने से बिलोंग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनकी खसूसी दिलचस्पी है, और ये फ्यूचर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना चाहते हैं। तो आज हम इनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एजुकेशन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अलीम, हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, और आप अपना एक मुख्तसर तारुफ पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो थैंक यू आपका। और सेकंडली सर, मैं यहाँ पे सीओई में जैसे आपने बताया आपके साथ ही एज अ कोलीग यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और सेकंडली ये कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें एआई में, क्योंकि एआई जो है इन फ्यूचर जो देखा जा रहा है कि एआई का काफ़ी यानी कि स्कोप आ रहा है, और हर चीज़ में जो है वो एआई ही यूज़ हो रही है तकरीबन। और जैसे कि आपने पूछा कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका कहने के एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है यही। जैसे चैट जीपीटी है, इसको हम हर चीज़ से स्टडी के तौर पे भी बहुत अच्छा एज ए टीचर एक यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली इससे हम काफ़ी चीज़ के आइडियाज़ ले सकते हैं। लाइक बिजनेस में भी ये काफ़ी यानी कि बेनिफिशियल है। और हर चीज़ के लिहाज से ना ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी काफ़ी यानी कि यूज़फुल ये चीज़ है। और मैं खुद चाह रहा हूँ कि इससे ना हो, क्योंकि इसमें जो है लर्निंग स्किल्स हमें सीखने को मिलती है काफ़ी। जो हमारे जहन में हमारे माइंड में आइडिया होता है उसको यानी कि ये एक प्रॉपर तरीके से ना हमारे आगे ये परफॉर्म करता है डिस्प्ले। तो बस यही कहना चाहूँगा, मैं खुद इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा अलीम, आप ये बताएं कि आपने मैट्रिक कब किया था?
सर मैट्रिक मैंने किया था 2016 में। आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे कौन से थे? सर कंप्यूटर साइंस थी मेरे। आर्ट्स थे कि साइंस थे? सर कंप्यूटर साइंस। तो आपको कौन सा मजमून सबसे पसंद था? सर मुझे मेरा जो ज़्यादा था वो एक फिजिक्स और सेकंड कंप्यूटर, ये दो थे मेरे। फिजिक्स आपको क्यों पसंद है? सर फिजिक्स बस एक इंटरेस्ट होता है उसमें, यानी कि जो चीज़ें हमारी डेली बेसिस में जो हम यूज़ कर हमारी होती है एक्टिविटीज़, उस लिहाज से मुझे यानी कि उसमें ज़रा दिलचस्पी और कंप्यूटर में भी दिलचस्पी? थी। जी सर कंप्यूटर में एक्चुअली मेरी कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मेरे जो फादर थे उनकी फील्ड भी कंप्यूटर की ही थी, तो बस उनके साथ ही वो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो है ना उसमें गेन हुआ था कंप्यूटर। तो सबसे नंबर ज्यादा किस मजमून में आए? सर नंबर्स जो ज़्यादा मेरे आए वो तो मेरे इंग्लिश में थे। इंग्लिश में तो नंबर कम आते हैं। सर मेरे जो हाईएस्ट आए थे वो इंग्लिश में ही आए थे। सबसे बुरा मजमून कौन सा लगा? सर बुरा मजमून मुझे लगता है मैथ्स। मैथ क्यों मुश्किल लगता था? सर वो उसमें देखा जाए तो उसमें जो से क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मुझे समझ में फॉर्मूलेस वगैरह, और दूसरा ये कि वो कभी मैंने देखा नहीं है कहीं पे यूज होते हो, बस वो इस वजह से ना मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी रिहाइश किस जगह पर? सर मेरी रहायश ये किला गुजर सिंह है। आपके वाले साहब भी टैप्टा में? जी सर वो टेप्टा में थे, वो ये आईटी इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा, अब ये बताएं कि कितने बहन भाई हैं? सर हम चार बहन भाई हैं। आप छोटे हैं या बड़े हैं? सर मैं सबसे छोटा हूँ, तीन मेरे सिस्टर्स हैं, वो मैरिड हैं, और फोर्थ नंबर पे मैं हूँ। तो आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? सर मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं जो एक अपना कह लें साइड बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, और उससे उसके लिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ना इससे मिलते हैं, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यानी कि मज़ीद इसको यूज़ करने का एक अच्छा तरीका आ जाए, ताकि मैं जो है ज़्यादा इससे ना फ़ायदा उठा सकूँ। आप कौन से एआई टूल इस्तेमाल करते हैं? सर बेसिकली ज़्यादा जो से है वो कैनवा और जेमिनी में यूज़ कर रहा हूँ। चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं? जी सर चैट जीपीटी भी करता हूँ, लेकिन वो बस कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस कर लेता हूँ चैट जीपीटी भी यूज़। कौन सा टूल आपको सबसे अच्छा लगता है? सर जो मेरी फील्ड के हिसाब से मैं देख बताऊँ तो मैं ज़्यादा कैनवा या जेमिनी ही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही मुझे ज़्यादा अच्छी यानी कि लग एआई टूल से आप किस तरह की मदद ले रहे हैं? रहा है। सर इससे मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड ही आइडियाज़ वगैरह लेता हूँ। कोई चीज़ यानी कि मैंने कोई डिज़ाइन करना है, तो मैं उसको अपना एक प्रॉम्प्ट प्रॉपर तरीके से देता हूँ कि इस तरीके से ना मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग में ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे जनरेट करके ना वो फिर देते हैं, तो उससे काफ़ी मुझे आइडिया मिलता अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं, है। जी सर। उस प्रॉम्प्ट को चेंज करके जो आपको आउटपुट मिलती है, जी सर। उसमें कोई तब्दीली आती है? अ, जी सर आती है थोड़ी बहुत। अगर आपकी प्रॉम्प्ट डिटेल होगी तो आपको जवाब अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपकी प्रॉम्प्ट मुकम्मल नहीं होगी जी सर तो आपको जवाब इनकम्प्लीट मिलेगा। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं एआई का ना करूँ, ताकि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो भी मैं सीख सकूँ। ये मैं बस इस तरह का ही चाह रहा हाँ जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक पूरी फील्ड है हूँ। जी सर। और उसमें आपको सीखना चाहिए। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम एजुकेशन में एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर एजुकेशन में भी एआई को यानी कि देखा जाए, जो आजकल खैर मेरी तो इस टाइम एजुकेशन की लाइफ जो है वो तो कंप्लीट हो गई है, तो जो मैं आजकल के ये स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ उसमें यही देख रहा हूँ कि कोई चीज़ कह लें कि अगर डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स में है या काफ़ी लेंथी है, तो उसको ज़रा शॉर्ट में करके और मेन पॉइंट्स जो है ना वो उसमें करके दे दे, काफ़ी यानी कि ईज़ी वो बना देती है चीज़ को स्टडी के लिए ना।
ताकि बच्चों को जो है आजकल, और ऊपर से ये है कि हम एआई को उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हम उसको ट्रेन करेंगे। हम उसको अपने मुताबिक जिस तरह के हम ट्रेन करेंगे वो उसी तरह की हमें आउटपुट देगा। तो अपने मुताबिक अगर हम स्टूडेंट हैं जिस क्लास के हैं उस मुताबिक उसको हम ट्रेन कर लें, तो वो हमें उसी लेवल के यानी कि आंसर्स वगैरह देगा एआई। अच्छा, इसमें ये बात है कि अगर एक टीचर है, जी सर। उसने एआई पढ़ानी है जी सर। या कोई भी मजमून पढ़ाना है, हुँ। तो चैट जीपीटी से उसको किस तरह से मदद मिल सकती है? सर चैट जीपीटी से उसको काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं टीचिंग करने के, कि वो किस तरह की टीचिंग करना चाह रहे हैं उसमें, यानी कि असल में टीचिंग का इतना आइडिया नहीं, लेकिन यही है कि टीचिंग के रिलेटेड उसको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये जो अब काफ़ी जैसे कि आप देखते हैं टाइम के साथ-साथ स्टडीज़ में और हमारे सिलेबस वगैरह में काफ़ी अपग्रेडेशन होती है। तो वो उसपे सारा होता है, उसमें टीचर्स के लिए भी यानी कि काफ़ी ये बेनिफिशियल है ये। अच्छा, ये बात है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हुँ। जो लेसन प्लान पढ़ाते हैं, टॉपिक्स पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को, फिर एक शेड्यूल बनाते हैं कि इस दिन को ये टॉपिक पढ़ाना है, इस दिन को ये प्रैक्टिकल करवाना है। फिर उसके बाद ये है कि 1 महीने में इतने टॉपिक कवर करने हैं, इस महीने में इतने प्रैक्टिकल कवर करने हैं। इसका सारा शेड्यूल तैयार करना, प्रैक्टिकल की जॉब शीट्स तैयार करना और फिर लेसन प्लान तैयार करना, ये सारी चीज़ें आप एआई से बनवा सकते हैं। जी सर, हम उसको अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसको एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट दें, तो वो हमें उसकी हर चीज़ यानी कि बना के दे सकते हैं, प्रॉपर एक शेड्यूल हमें उसका वो स्केड्यूल बना के ना, वो हमें चैट जीपीटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम उसको बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट्स बताएँ, तो वो हमें उसके रिलेटेड हर चीज़ यानी कि बना के देगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि टीचर्स का टाइम बचेगा। जी सर, इससे टाइम बचेगा और जी, यही है कि एक तो टाइम बचेगा और दूसरा ये कि जो-सा वो उन्होंने इतना वो अपना ज़हन जो है कंप्यूटर पे वो उसको डिज़ाइन करने में सारा करना है, वो चीज़ भी यानी कि उसके लिए ना वो उनको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, उनके मेंटली तौर पे। तो वो जो उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो एग्ज़ैक्ट उसको प्रॉम्प्ट एज़ अ प्रॉम्प्ट उसको वो दें, तो वो हर चीज़ जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना आपको वो दे देगा बना के। अब डॉक्यूमेंटेशन सारी एआई तैयार कर देती है, जी सर। तो टीचर ने सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करना है। जी सर। यही बात आप कर रहे हैं ना? एग्ज़ैक्टली सर। तो इस तरह उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी पढ़ाने की। जो वो पढ़ा रहा है बच्चों को समझ भी आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो इस तरह से एआई का फ़ायदा है। दूसरा जो फ़ायदा है वो स्टूडेंट की तरफ है। अगर टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, स्टूडेंट को समझ नहीं आई, अब वो घर चला गया, अब वो जानना चाहता है उसके बारे में, तो वो उस पे सर्च करेगा, एग्ज़ैक्टली। उसको उसी वक़्त जवाब मिल जाएगा। अगर रात को 2 बजे उसके ज़हन में कुछ चीज़ आई है, वो चैट जीपीटी से पूछेगा, फिर उसी टाइम मिल जाएगा उसको उसे। उसी वक़्त जवाब मिल जाएगा। जी सर। तो ये स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो गया और टीचर का भी फ़ायदा हो गया। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो ये तो इसका है मुस्बत इस्तेमाल। जी सर। इसके मनफ़ी इस्तेमाल क्या होते हैं? सर मनफ़ी यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा पॉज़िटिव उसका रिस्पॉन्स है तो वहाँ पे नेगेटिव भी है। तो लेकिन फ़ोकस जो है वो पॉज़िटिव पे ही करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पे करने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। और सेकंड ये कि इसको देखा जाए, जैसे आजकल हमारे सोशल मीडियाज़ पे ही देख लें आप, काफ़ी ज़्यादा वो जो है फ़ेक एडिटिंग करके वीडियोज़, क्लिप्स वग़ैरह जो है, ये जनरेट करके ना वो कर रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर-सी बात है, इसमें हमारे मोबाइल का सारा डाटा भी जाता है और हाँ, क्योंकि सारा कुछ हम इस पे अलाउ करते हैं, सारी इसके पास एक्सेस होती है हमारे मोबाइल की। और हम अगर इसमें कोई मनफ़ी इस्तेमाल करें तो हम इसमें फ़ेक इमेजेस वग़ैरह भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि किसी की लाइफ़ के लिए या किसी की पर्सनल अटैक करने के लिए वो काफ़ी यानी कि डेंजरस चीज़ है। तो ये इसके यानी कि ज़्यादा आजकल जो है ना
ज़्यादा मनफी इस्तेमाल इसका यही हो रहा है आजकल। अच्छा, एआई का इस्तेमाल करके हमारी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जी सर। लेकिन इसका असर कोई जॉब की मार्केट पे भी पड़ा कि एआई की वजह से बेरोजगारी पैदा होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई जो है ये इसने सिर्फ कह लें कि एक लोगों की जो लाइफ थी वो थोड़ी इजी बना दी है। बाकी ये जो ज़ाहिर सी बात है, जो एक इंसान फिजिकली काम कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। ज़ाहिर है एआई को भी ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की ही किसी फिजिकल शख्स की ज़रूरत है। तो एआई अपने ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको भी ज़ाहिर सी बात है यूज़ करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जहाँ पे लोगों पे बर्डन ज़्यादा था उनकी ड्यूटीज़ में, वो इसने कम कर दी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एआई एक अच्छा असिस्टेंट है। जी सर। उसको हम बेहतर एज़ असिस्टेंट यूज़ करें तो वो काफ़ी हमारे लिए ना बेहतर है। हाँ, उसको हम ये नहीं कह सकते कि क्लास में से टीचर को हटा दें यस सर। तो वो आपको पढ़ा लेगा। वो आपको पढ़ा एग्जैक्टली लेगा। वो आपको बता वो सकता है आपको बता सकता है जो आप उसको कमांड तो दें। आप उसको कमांड दें। ऐसे ही। ठीक है, उसको ये नहीं ठीक है, पता कि मेरे उसको ये सामने नहीं जो पता बच्चा कि मेरे बैठा है सामने जो बच्चा बैठा है उसका मेंटल लेवल क्या है। उसका मेंटल लेवल क्या है। वो उसके मेंटल लेवल पे वो आके उसके इसको नहीं मेंटल पढ़ा लेवल पे सकता, आके उसको नहीं पढ़ा सकता। ये एग्जैक्टली। उस्ताद पढ़ा सकता ये उस्ताद पढ़ा जी सकता। सर। उसने जो उसने कमांड देनी है जो कमांड देनी है उसमें आपको उसका जवाब दे उसने देना, आपको उसका जवाब ऐसे देना, ऐसे। चाहे आपको समझ आए या चाहे ना आए। आपको समझ आए या ना आए। उस्ताद जो है वो उस्ताद जो आपको है वो आपको पढ़ाएगा, आएगा, जवाब भी देगा, जवाब भी देगा, और जो चीज़ नहीं और समझ जो आई चीज नहीं समझ आई वो ज़्यादा बेहतर तौर पे वो ज्यादा समझाएगा। बेहतर तौर पे समझाएगा। और सर सेकेंडली ये है कि देखिए ना कि एआई जो से ये हमें सिर्फ एक थ्योरी के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ये हमें नहीं करवा सकते। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल जो है वो इंसान फिजिकली तौर पे ही कर सकता है। तो ये जो है कि एआई आई है इसने बेरोजगारी बढ़ा देगी, तो ये हमारी जॉब चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ये बस ना एक अपनी मेंटली है, बातें हैं, सारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। एआई की वजह से कोई जॉब एआई की वजह अपॉर्चुनिटीज से कोई पैदा जॉब हुई हैं? अपॉर्चुनिटीज पैदा भी हुई। जी सर, काफ़ी मेरे जो इल्म में आई है, मेरे सुनने में आई है कि एआई की वजह से जिन्होंने डिप्लोमास वगैरह की ये कोर्सेज किए हैं एआई के, उनको काफ़ी उनके यानी कि जो वो जॉब्स कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई है उनका। क्योंकि आजकल जो है देखा जाए ज़्यादा एआई का ही यूज़ हो रहा है हर जगह पे, हर फील्ड में। तो जाहिर सी बात है जिसको एआई का कुछ पता ही नहीं, हाउ ना नहीं है, तो वो क्या उसका यूज़ करेगा, क्या वो ऑपरेट करेगा इस चीज़ को। तो जिन्होंने किया उनकी ज़ाहिर सी बात है उनकी थोड़ी सी ना ज़्यादा हुई है इम्प्रूवमेंट उनकी जॉब। जी बिल्कुल अच्छी बात जी है। बिल्कुल अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है आपको? उसमें दिलचस्पी जी है सर। आपको। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? कौन सा स्पोर्ट्स पसंद सर है। मुझे बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है। बैडमिंटन में तो पाकिस्तान की बैडमिंटन में टीम तो है कोई? पाकिस्तान की टीम है कोई। सर इतना मुझे नहीं आइडिया, मुझे सिर्फ यानी कि मुझे एक इंटरेस्ट है कि फ्री टाइम में मैं उसको खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ से ही ना मैंने पार्टिसिपेट उसी में ही किया है। तो इतना यानी कि मैं उसमें ज़्यादा नहीं हूँ कि उसकी टीम्स वगैरह या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। बस ये है कि अपनी एक हॉबी मैंने बनाई है कि फ्री टाइम में मिलना, अगर मिल जाए मुझे फ्री टाइम तो मैं बैडमिंटन खेलना पसंद बैडमिंटन खेलने के बैडमिंटन रूल्स खेलने वगैरह के पता है? रूल्स करता हूँ। जी वगैरह सर, पता वो तो है। मुझे अच्छा, अब ये बताएं अच्छा कि अब ये बताएं कि हमारा जो कौमी खेल हॉकी है, जी सर। उसके बाद क्रिकेट है, उसके बाद क्रिकेट जी है। सर, एग्जैक्टली। तो दोनों में हमारी टीम दोनों में जीरो पे हमारी आ गई टीम है। जीरो पे आ जी गई। सर। अब उसका क्या हाल है कि हम इसको बेहतर कर सकें? सर इसका जो हल सबसे पहले यही है कि जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट को नहीं इतना प्रमोट किया जाता जितना कह लें कि रेफरेंस वगैरह को ना किया जाता है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो जब रेफरेंस आ जाए तो जाहिर सी बात है वो उनका ना इतना एक्सपीरियंस होता है, ना उनको इतनी भावना होती है इस चीज़ की, और वो आ जाते हैं। लेकिन ये है कि टैलेंट को प्रमोट किया जाए तो इंशाल्लाह इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ जी, मेरिट के ऊपर प्लेयर जी सर। जी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं की जाती और सिफारशी प्लेयर रखे जाते हैं। वो जब सिफारशी प्लेयर टीम में आते हैं
तो फिर वो मेहनत नहीं करते, पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं और टीम का नुकसान